जब से सरकारें आई है बीजेपी की, ना आदमी सुरक्षित है, ना युवा सुरक्षित है, ना जो आप दुर्नीति का बात के, जो तोलाबाजी का बात करके आए थे, ना वो रुका है। ये तोलाबाजी का बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बीजेपी के लोग ही बोल रहे हैं। सब बीजेपी अध्यक्ष से लेके जो पूर्व अध्यक्ष हैं या फिर कोई और उनके लोग हैं, सब लोग तोलाबाजी का बात कर रहे हैं। अगर आपसे नहीं रुक रहा है तो आप सत्ता छोड़ दीजिए ना, बातों में मत घुमाइए। आपने वादा क्या किया था चुनाव के टाइम में कि हम 1 लाख भर्तियां देंगे, गवर्नमेंट जॉब देंगे, क्या उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ? आपका हनीमून पीरियड 3 महीना खत्म होने जा रहा है, अब आपके पास हनीमून पीरियड नहीं बचा है। अब हम सवाल आपको सड़क से पूछेंगे। हम युवा जो है ना, वो पूरा दिमाग खुल गया है। कल 5 अगस्त प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने लाल बाजार घेराव अभियान का ऐलान किया है, जिससे बंगाल की राजनीति काफी गर्मा रही है। जी हाँ, ये अभियान कल यानी 5 अगस्त को कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कॉलेज सीट से लेकर लाल बाजार जाया जाएगा प्रदेश कांग्रेस की तरफ से। इसी अभियान को लेकर के आज प्रदेश कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सुरेंद्र सरकार और कांग्रेस पार्टी के काफी बड़े नेता भी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल थे। आइए उन्होंने आज क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। উনি উচিত দেশের মানুষের রায় নেওয়া, তবে কোনোভাবেই আমি নির্বাচন কমিশনকে রেখে নিরপেক্ষ ভোট কোনো সময় হবে কোনো সময় হবে না বলা খুব ডিফিকাল্ট। আমার ব্যক্তিগত মত, নিশ্চিতভাবে মধ্যপ্রদেশে জিতেছে, বিহারে জিতেছে, কিন্তু তা বাদে আপনি দেখবেন আমরা বরাবর যে কথাটা বলি, নির্বাচন কমিশন তারা হচ্ছে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করছে না। এই নির্বাচন কমিশন যে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করছে না, এবার বিজেপি লুট করতে চাইলে সবসময় পুরোটাই লুট করে নিতে পারে। এমনও হতে পারে কালকে বিজেপি এই কথা বলবে যে দেখো ওখানে তো জিতলে, এরপরে সবগুলোতেই তারা লুট করে নেয়, বলবে তখন তো তোমরা বলোনি যে এই জিতটা মানুষের জিত নয়। অতএব আমি এটা মনে করি বিজেপি সুকৌশলে তার সমস্ত এজেন্সিকে কাজে লাগিয়ে তারা তাদের মতো নির্বাচন করে। এক কথায় তাদের এই বিষয়টাকে কোনোভাবেই মন্তব্য করা ঠিক নয়। আর সার্বিকভাবে আমার মনে হয় সারা দেশের মানুষ এখন বিজেপি বিরোধী হয়ে গেছে। এখন কলকাতা থেকে ওরা এই আইএসআই ইউনিটকে তুলে নিয়ে চলে যেতে চান। এ নিয়ে আমি ওখানে গিয়ে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমরা মিছিল করেছিলাম, রাহুল গান্ধীর কাছে এখানকার প্রতিনিধি দল তারা মিট করেছিলেন এবং এখনো পর্যন্ত নিয়মিত তাদের সঙ্গে আমাদের দেখা সাক্ষাৎ হচ্ছে। এবং আপনারা জানেন ডক্টর নাসির হোসেন গতকাল তিনি এই আইএসআই প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলেছেন এবং আগামী দিনে এইটাকে অ্যাকচুয়ালি এটা মিনিস্ট্রি অফ ফাইন্যান্সের মধ্যে পড়ে এবং এরা এই ডিপার্টমেন্টটাকে এই কারণে তুলে নিয়ে চলে যেতে চাইছে। তার কারণ যেখানে যে ডিপার্টমেন্টের মধ্যে ওনারা সমস্যার সম্মুখীন হবে, এর প্রধান কারণ হচ্ছে পরিসংখ্যান। এই পরিসংখ্যানে গড়বড় করতে চায় এই সরকার। আসল পরিসংখ্যান যাতে বাজারে না আসে, যাতে পাবলিক ডোমেনে না মানুষের কাছে পৌঁছয়, সেই কাজটা করার জন্য এই ডিপার্টমেন্টটাকে ওনারা করায়ত্ত করতে চাইছে এবং সম্পূর্ণভাবে এটিকে সেই কারণে বাংলা থেকে তুলে নিয়ে চলে যেতে চাইছে। আমি আশা করব বর্তমান যে রাজ্য সরকার এসছেন তারা এবং মুখ্যমন্ত্রী তার দৃষ্টি আকর্ষণ করব সে ব্যাপারটা তারা কিভাবে দেখেন, কি করেন। আরেকটি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট বলে দিই, আমাদের আপনারা জানেন যে 21শে জুলাই যখন আমরা মনীশ গুপ্তের বিষয় উত্থাপন করেছিলাম, এ ব্যাপারে ওই অনুষ্ঠানের মানে এই কর্মসূচি যিনি চেয়ারম্যান ছিলেন অমিতাভ চক্রবর্তী, তিনি হচ্ছে এফআইআর করেছেন থানাটা হেয়ার স্ট্রিট থানায়। এখনো পর্যন্ত কিন্তু সে ব্যাপারে আমরা কোনো অগ্রগতি দেখতে পাইনি। আমরা আশা করব যে রাজ্য সরকার এই ব্যাপারে সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করবে। আপনি কথা বলছিলেন, গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক চলছে তৃণমূল কংগ্রেসের পরিচালনা সংসদ, তারা বিজেপিতে যাবেন না, মানে শুভেন্দু অধিকারী তিনি বসেছেন, এই ব্যাপারে আপনারা কি মনে করেন? আমরা তো আগেই বলেছিলাম যাহা বিজেপি তাহাই তৃণমূল, সেটাই তো বাস্তবে আমরা দেখতে পাচ্ছি।
তার কারণ আপনাদের জানা প্রয়োজন যে এই রাজ্যে বিজেপি জানে তারা কি পদ্ধতিতে ক্ষমতায় এসছে। তারা সামগ্রিকভাবে এটা লুট করে নিতে চাইছে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাটা। আপনারা জানবেন হয়তো অনেকদিন ধরে আমরা বলছি ইভিএম এর ব্যাপার, ভোট লুটের ব্যাপার, রাহুল গান্ধী বলেছেন ভোট চুরির ব্যাপার। ক্যালকাটা ক্লাবের ভোট নিয়ে যে ঘটনা ঘটেছে আপনারা সবাই জানেন। তো সেখানে যদি এই ডিজিটাল সিস্টেমে এদিক ওদিক হয়, তাহলে ভোটের এই সিস্টেমও এদিক ওদিক হতে পারে। এবং কালকের যে নির্বাচনে জেতা হারা যাই রিপোর্ট আসুক, সবটাই কিন্তু বিজেপির খেলা। कांग्रेस की तरफ से हम लोग के प्रेसिडेंट साहब ने एक मिছিল बुलाया है, लाल बाजार अभियान है। हम लोग के कर्मियों पे ऊपर 21 जुलाई में जो भयानक आक्रमण हुआ था और उसके बाद जो हम लोग नीट को लेके जो हम लोग का मिছিল हुआ था छात्रों और युवाओं का, उसमें भी हम लोग का बहुत सारे 4 के ऊपर लड़के लोगों को, जो लोग वायलेंस के साथ कोई तरफ उनका कोई रोल नहीं था, उनको अरेस्ट करने का, इसके खिलाफ हम लोग कल लाल बाजार अभियान करने वाले हैं। और इसमें हमारे कांग्रेस के तरफ से सभी लीडर उस रैली में रहेंगे। जो लॉ को जिनको संभालना है, वो लोग अगर किसी को ऐसी तरह बेइज्जत करेंगे जब उनके खिलाफ अदालत में कुछ साबित भी नहीं हुआ था, तो गलत है ना। ये गलती के लिए तो हम लोग जा रहे हैं। हम लोग जो बोलते थे जो 2026 तक 4 मई तक जो गलत था, आज भी अगर वो गलत होगा तो कांग्रेस उसके खिलाफ रास्ते में आंदोलन करेंगे और उसके ऊपर जो हम लोग के ऊपर जो कार्रवाई होगा उन्हें हम लोग फेस करेंगे। यही राजनीति का लड़ाई है। अभी आपके सभापति ने कहा कि कल पुलिस कर्मियों को चॉकलेट और कैडबरी दिया जाएगा, तो क्यों, कौन सा ब्रांड के चॉकलेट दिया जाएगा? देखिए, हमारे प्रेसिडेंट साहब बहुत पार्लियामेंट्री है, ठीक है। वो हमेशा चाहते हैं कि एक सोसाइटी, एक जो जगह है उसमें लॉ कायम रहे। बट अगर लॉ जो जिनको कायम रखना है, वो अगर लॉ को अपने हाथ में लेके जो आंदोलन करते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आंदोलन करने का जगह दिया गया है, उसके खिलाफ अगर कुछ करेंगे, हमारे वो चाहते हैं कि हम लोग लॉ ब्रेक ना करें। हम लोग अपना जो कर्मियां हैं, क्योंकि एक चीज समझ लीजिए कि माइनॉरिटी कर्मियों के ऊपर हमारे पुलिस आज बेनकाब होके इनके ऊपर केस कर रहे हैं। तो हम लोग का प्रेसिडेंट का वही रोल है कि वो उनका प्रोटेक्शन करे। तो हम लोग जैसे, हम लोग का कोई इरादा नहीं है कि हम लोग लॉ ब्रेक करें। उन्होंने बोल दिया है कि हम लोग कोई तोड़फोड़ नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम लोग के कर्मियों के ऊपर पुलिस हावी हो जाएंगे तब हम लोग देख लेंगे। हम लोग का अभी तक जो इरादा है वो आपके सामने हमारे प्रेसिडेंट साहब ने रख दिया है। हम लोग भी वही बोलेंगे, लेकिन अगर हम लोग के कर्मी के ऊपर कुछ जाति होगा तो हम लोग उस टाइम पे उधर पे मौके पे हम लोग देखेंगे। काफी बाय इलेक्शन हुआ 3 जगह, जिसमें से 2 जगह अपोजिशन पार्टी जीता। देखिए, ये तो होना ही है ना। कोई डेमोक्रेसी में सब लोग को क्या लग रहा था कि कांग्रेस खत्म हो जाएंगे, लेकिन एमपी में भी जहाँ पे 20 साल से बीजेपी का सरकार है, बाई इलेक्शन में हम लोग जीते हैं। प्रशांत किशोर साहब ने बंकीपुर में, जहाँ पे नितिन नवीन का जगह है, उनका पूर्व पुरुष भी उधर से, उनका पिताजी भी उधर का एमएलए था। तो ये तो एक मैसेज जा रहा है पूरा दुनिया में, पूरा इंडिया में, कि एक तरफ का सिर्फ राजनीति नहीं चलेगा। जो राजनीति गलत है उसके खिलाफ लोग एक साथ होंगे और लोग जो पार्टी अभी सरकार में है उनको पलटने का भी सोच उनमें आ चुका है और आगे आगे इलेक्शन में वो सोच और आगे बढ़ेगी। लाल बाजार घेराव इसलिए है कि जो आपने एक गुंडा एक्ट लेके आया, दूसरी क्या है जो दुर्नीति हो रही है, पक्षपात का जो राजनीति हो रहा है। लोगों, अगर कोई स्टूडेंट प्रोटेस्ट किया तो उसका राइट है ना, डेमोक्रेटिक राइट है, आप उसके ऊपर कार्रवाई कर देते हैं। ये होने नहीं देंगे हम सड़क से संसद तक इसकी पुरजोर विरोध करते हैं। मगर मैं आपसे फिर से पूछना चाहता हूं कि आपने, पुलिस वाले को भी मैं बोलना चाहता हूं कि देखिए, आपको सीपी भी नहीं बचाएगा, आपकी नौकरियां खा जाएंगे। हम पढ़े लिखे लोग, जाहिल नहीं है। तो अगर आप कार्रवाई गलत तरीके से करेंगे तो आपकी नौकरियां खा लेंगे। आपको ना सीपी बचाएगा, ना आपका यहाँ का मुख्यमंत्री बचाएगा। मैं पूछना चाहता हूं यहाँ के जो कमिश्नर हैं उनसे भी कि आप पक्षपात करके राजनीति में आप अपने आप को इन्वॉल्व ना करें। आपका काम है
लॉ एंड ऑर्डर को सही करना, आप लॉ एंड ऑर्डर को सही करें। अगर जब से सरकारें आई है बीजेपी की, ना आदमी सुरक्षित है, ना युवा सुरक्षित है, ना जो आप दुर्नीति का बात किए, जो तोलाबाजी का बात करके आए थे, ना वो रुका है। ये तोलाबाजी का बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बीजेपी के लोग ही बोल रहे हैं। सब बीजेपी अध्यक्ष से लेके जो पूर्व अध्यक्ष है या फिर कोई और उनके लोग हैं, सब लोग तोलाबाजी का बात कर रहे हैं। अगर आपसे नहीं रुक रहा है तो आप सत्ता छोड़ दीजिए ना, बातों में मत घुमाइए। आपने वादा क्या किया था चुनाव के टाइम में कि हम 1 लाख भर्तियां देंगे, गवर्नमेंट जॉब देंगे, क्या उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ? हनीमून पीरियड 3 महीना खत्म होने जा रहा है, अब आपके पास हनीमून पीरियड नहीं बचा है। अब हम सवाल आपको सड़क से पूछेंगे। हम युवा जो है ना, वो पूरा दिमाग खुल गया है। अब अंधभक्त लोग भी जो बैठे हुए थे वो अंधभक्त बचे नहीं हैं, वो भी सवाल कर रहे हैं कि जो आपने बोला था सेंटर में 2 करोड़ रोजगार जो आज तक नहीं आए, तो आप जो स्टेटों में बोला है वहां पे भी सरकारें कुछ नहीं कर रही है। इसकी दुर्नीति के अगेंस्ट में कल लाल बाजार घेराव हम करेंगे और लोगों को मैं आह्वान करता हूं कि आप भी इनमें शामिल हो, क्योंकि जब घर जलेगा तो हमारा घर नहीं है, खाली आपका भी घर है। आप भी साथ आए सड़क पे। अगर आप देखिए, पार्टी किसी का भी हो, कोई भी पार्टी करे, किसी भी पार्टी से बिलोंग करे, और उस पर हमारा कोई नहीं राइट है, वो डेमोक्रेटिक राइट है आपका, आप रह सकते हैं किसी पार्टी में। मगर मैं आपसे फिर से गुजारिश करूंगा कि अगर घर में आग लगेगी तो आपके घरों में भी आएगी। अगर कोई बंदा अरेस्ट होगा गुंडा एक्ट में तो आपके घरों के लोग भी होंगे। मैं आपसे फिर से गुजारिश करता हूं, कल लाल बाजार घेराव में आप जरूर शामिल हो। देखिए, बंगाल में कांग्रेस ने एक जो आंदोलन हमने छेड़ा है, भारतीय जनता पार्टी जानता है अब कांग्रेस का टाइम आ चुका है, और कांग्रेस जब जगता है तो भारतीय जनता पार्टी को सुला देता है। तो भारतीय जनता पार्टी का आइडियोलॉजी को दतिया में सुला दिया गया, तो प्रदेश का जो इलेक्शन का रिजल्ट है कैसे सुलाया गया? कांग्रेस जब जगता है तब भारतीय जनता पार्टी को सुला देता है, जो सो जा बेटे, अब तेरा बस का नहीं है, देश चलाना, राज्य चलाना तेरा बस का नहीं है। तो हाँ, उसी को लेकर 21 जुलाई को शहीद दिवस में इतने लाखों लोगों का जो मजमा हुआ, उसमें उसको रोकने के लिए हमारे कार्यकर्ताओं पर जो जुल्म ढाया गया, उनको रोका गया, इनको जगह जगह पर उनके ऊपर अत्याचार किया गया, तो उस पुलिस प्रशासन को हम छोड़ेंगे नहीं। उसी पुलिस प्रशासन को उसके हमारी हक और हमारी मजलूमों को इंसाफ मिले, और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सही से सही उनको इंसाफ मिले। और एक भी वो लोग सोच ले अगर हम लोगों को छेड़ेंगे तो हम लोग भी बैठे नहीं रहेंगे। इसलिए पुलिस को हम अल्टीमेटम देने प्रदेश कांग्रेस के माननीय सभापति श्री शुभंकर सरकार के नेतृत्व में, लीडरशिप में हम लोग सत्याग्रह अभियान कर रहे हैं। ये सरासर कानून के खिलाफ है, भारत के आइन के खिलाफ है, ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। कानून के हर किसी भी पहलू से, किसी भी नजरिया से देखा जाए, हर नजरिया में ये सरासर गलत है, और इसमें कॉग्निजेंस हाईकोर्ट में भी लिया है। लेकिन ये बेशर्म सरकार जो है, ये लज्जाहीन सरकार जो है, ये इस कानून के, संविधान को वैल्यू नहीं देता, संविधान के आइडियोलॉजी को, संविधान वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को मानना नहीं चाहता। लेकिन हम इसको मनवाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। जो जो विक्टिम हो रहा है उसके खिलाफ जाए, हाईकोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। ये लड़ाई कानूनी भी होगा, ये लड़ाई रास्ते में भी होगा।